बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद सईद है। आज हम खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर की 10th क्लास की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का यूनिट 11 जिसका नाम है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यानी जीएमओज की एक्सरसाइज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे एसएलओ बेस्ड एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कंप्रीहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जीन एंड जेनेटिक्स, यानी जीन और जेनेटिक्स से क्या मुराद है। अ जीन इज लाइक अ टाइनी instructions in our body's information database DNA that carries traits from parents to children. Genetics is the study of genes, genetic variation, and how traits are passed down in living things. Second question है why is the discovery of gene called a game changer in biological sciences? हयातियाती साइंस में जीन की दरियाफ्त को गेम चेंजर क्यों कहा जाता है? आंसर है इट चेंज हाउ वी अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट ट्रेट्स इन plants, animals, and people, helping us improve them for our benefit. Third question है what is genetic engineering? What role does genetic engineering play in producing genetically modified organisms? जीनियाती इंजीनियरिंग क्या है? जीनियाती इंजीनियरिंग जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा हयातियात की पैदावार में क्या किरदार अदा करती है? ओके, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ट्वीकिंग यानी चेंज स्लाइटली एंड ऑर्गेनिजम्स genes by adding DNA from other organisms. It helps create genetically modified organisms with desired traits like disease resistance or better taste. Four है name some GMOs and describe their characteristics by showing how they are different from naturally occurring organisms. Answer है starlit avatar plant grows without external stimuli. BT crops have an insect protection gene. Tomatoes stay on the vine longer, and soybeans have less fat. GMOs differ because we intentionally modify their genes from specific benefits. Question fifth है write at least two merits and two demerits of GMOs. GMOs की कम अज कम दो खूबियां और दो खामियां लिखें। Merits हैं increase crop yield, potential to eradicate hereditary diseases. Demerits हैं unpredictable effects on ecosystems, potential health risks like liver and kidney problems. Six है what in your opinion will be the effect of GMOs on our lives, lifestyle and environment in the future? आपकी राय में मुस्तकबिल में हमारी जिंदगियों, तर्ज जिंदगी और माहौल पर GMOs का क्या असर पड़ेगा? GMOs would offer more food, but we must be cautious about potential risks to health and nature. Balancing benefits and safety is crucial. Seventh, have you ever used genetically modified foods? Give your suggestions and solutions for the safe use of genetically modified foods. क्या आपने कभी जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा खाने का इस्तेमाल किया है? जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा खानों के महफूज इस्तेमाल के लिए अपनी तजवीज़ और हल दें। Yes, I have used genetically modified foods, particularly fruits. I have noticed that genetically, I have noticed that I have noticed that genetically modified varieties often have smaller seeds and a more delicious flavor compared to the regular ones. Suggestions हैं label GMO
foods clearly conduct long-term studies on their effects and prioritize safety over profit. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपने स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और ऑप्शन एक सेलेक्ट करना है जो ठीक है। फर्स्ट है द इंफॉर्मेशन डेटाबेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, सो ऑप्शन डी इज द राइट वन, जीन्स। सेकंड है by turning points in this field was discovery of the gene. In this sentence the phrase turning point mean टर्निंग पॉइंट से क्या मुराद है? सो इज द राइट ऑप्शन a point in a chain of events at which an important change occurs. 3 has scientists first discovered in 1946 that DNA can be transferred b- between organisms. The idea expressed in this statement is based on is the right, which is the fact, ये fact है. 4. After careful reading the text, genetically modified organisms, it looked to be more or argumentative. Fifth, a few decades ago, manipulation of genes in people, plants, and animal was just science fiction. This sentence mean, इस sentence से क्या मुराद है? Option D is the right. A few decades ago, control of genes in living organisms seems imaginary and was not possible in the real world. Next question here, deduce the meaning of unfamiliar words from the context by using evidence from the text and explain if you are correct, close or totally off, and why you think that happened. तो आपने कुछ unfamiliar वर्ड्स जो हैं उनको कॉन्टेक्स्ट से उनका उनका मीनिंग जो है वो अखज़ करना है, डिड्यूस करना है। जैसे हमारे पास है रीडिंग है, ओके, जैसे ब्रीडिंग है, जैसे अफसाइश नस्ल यानी रिप्रोड्यूस, मैनिपुलेशन है यानी कंट्रोलिंग और अल्टरिंग जीन्स, रेजिस्टेंस है यानी मज़ामत, स्टिमुलाई है तहरीक या मुतहर्रिक, ल्यूमिनेसेंट है यानी उमिटिंग लाइट यानी रोशनी देना, और एवेपोरेशन है यानी बुखरात में तब्दील करना। ए है कीपिंग इन व्यू द टेक्स्ट एंड द रीसेंट एडवांसेस of science, write or argumentative essay on the topic truth is stronger than fiction. तो आपने एक ऐसे लिखना है, argumentative यानी persuasive, एक आपने ऐसे लिखना है ट्रूथ इज स्ट्रॉन्गर देन फिक्शन, यानी आपने ये इसको प्रूव करना है एविडेंस और एग्जांपल्स के साथ। In the real world, some things are so surprising and unbelievable that they surpass everything we could imagine. This idea, truth is stronger than fiction, holds true when we look at the amazing discoveries in science. The text mention genetic engineering, where scientists change an organism's gene. This was once just a fiction, like a story, but now it's real. The discovery of genes and the ability to modify them is mind blowing. It's like a plot from a science fiction book coming to life. Truth in the form of scientific breakthroughs can be even more astonishing than the imaginative stories we create. Next, have we searched the internet about genetic modifications made in animals and write a paragraph on the first sheep ever cloned called Molly or Dolly. तो आपने इंटरनेट पे सर्च करनी है और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो एनिमल है इस पर ये आपने जो एवर क्लोन्ड हुआ है मॉली या डॉली पर आपने एक पैराग्राफ लिखना है। आपकी आसानी के लिए ये मैंने पैराग्राफ आपके लिए तैयार किया है, इसको आप अ, पढ़ लें। ओके, नेक्स्ट ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंसेस, हम जुमले की इकसाम की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको समझते हैं कि कितनी किस्म के जुमलों की किस्में हैं।
तो देर आर 4 कॉमन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, 4 आम किस्में हैं जुमलों की इंग्लिश में। ईच सेंटेंस टाइप हैज़ अ डिफरेंट पर्पस, और हर एक जो सेंटेंस टाइप है यानी किस्म है, उसका मुख्तलिफ पर्पस है। जैसे टू मेक स्टेटमेंट्स, अगर आप पहले किस्म का जो जुमला है जिसमें आप, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसमें आप क्या करते हैं, आप कोई भी बयान देते हैं, टू मेक स्टेटमेंट्स। और सेकंड में टू आस्क क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरे किस्म का जो सेंटेंस है इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, टू आस्क क्वेश्चंस। और थर्ड किस्म का जो सेंटेंस है उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जिसमें टू गिव कमांड, सजेशंस, वार्निंग, जिसमें हम कोई कमांड यानी किसी को हुक्म देते हैं, या कोई तजवीज़ देते हैं, या कोई वार्निंग। और फोर्थ किस्म का जो सेंटेंस है इसको एक्सक्लेमेटरी, यानी जिसमें हम कोई भी अपने इमोशंस का इजहार करते हैं विद स्टेटमेंट्स। चलें क्लासिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। आपने ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनकी आपने क्लासिफाई यानी इनको दर्जाबंदी करनी है कि ये कौन सा सेंटेंस है। जैसे फर्स्ट है, यक्स, आई आई फील टेरिबल दैट यू गॉट इनटू एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग। तो एक्सक्लेमेटरी है, एक स्ट्रांग इमोशन का जाहिर किया गया इसमें। नेक्स्ट है, वेयर इज द स्कूल। तो ये इंटरोगेटिव है क्योंकि ये WH वर्ड से शुरू हो रहा है और आखिर में क्वेश्चन मार्क है, तो ये सवालिया सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव यानी थर्ड वन है, यानी इसको यानी एक स्टेटमेंट दी गई है, द स्मोक alarm battery should be changed at least once a year। imperative है जिसमें कोई हुक्म दिया गया है, shut that door now। again, I love this plant। तो ये भी एक, क्योंकि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया गया है, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी है, यानी यानी इसमें इमोशन का को जाहिर किया गया है, यानी जिस बात को। स्लो डाउन बिफोर यू गेट इनटू एन एक्सीडेंट, तो ये एक हदायत दी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है, तो इम्पेरेटिव है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, अगेन ये जो अ, इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और डिड आई से एनीथिंग टू मेक यू एंग्री, तो अगेन जो है ये हेल्पिंग वर्ब डिड से शुरू है, तो ये और आखिर में क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी एक सवालिया फिक्रा है। नेक्स्ट है, चेंज एन अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। अब आपने क्या करना है कि एक आपको पॉजिटिव सेंटेंस दिया जाएगा, उसको आपने इसको नेगेटिव में भी तब्दील करना है, उसको सवालिया और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको एक ही जुमले को तब्दील करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे है, इट वाज अ इट वाज गुड ऑफ हिम टू हेल्प द पुअर मैन। तो ये एक सेंटेंस था, यानी उसने ये अच्छा किया कि उसने एक गरीब आदमी की यानी गरीब आदमी की मदद की। उसको नेगेटिव क्या है, इट वॉज नॉट गुड ऑफ हिम, नॉट लगाने से क्या था, उसको नेगेटिव बना दिया गया। इट वॉज नॉट गुड ऑफ हिम टू हेल्प द पुअर मैन। एक्सक्लेमेटरी कैसे बनाएंगे, हाउ गुड ऑफ हिम टू हेल्प द पुअर मैन, कितना अच्छा किया उसने कि उसने उस गरीब आदमी की मदद की। क्वेश्चन में, वॉज इट गुड ऑफ हिम टू हेल्प द पुअर मैन, तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आए और आखिर में क्वेश्चन मार्क, तो ये इंटरोगेटिव है। नेक्स्ट देखते हैं, तो शाजिया पास द टेस्ट, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव फिक्रा है। नेगेटिव में क्योंकि ये सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो इसलिए दैट इज द, ये जो सेंटेंस है ये पास सिंपल का है। नेगेटिव में शाजिया डिडंट पास द टेस्ट विच इज द नेगेटिव। और एक्सक्लेमेटरी में हुरे, शाजिया पास द टेस्ट, यानी एक स्ट्रांग इमोशन को जाहिर किया गया है। एंड क्वेश्चन में डिड शाजिया पास द टेस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन नेगेटिव,
एक्सक्लेमेटरी एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो आपने अगेन इन सेंटेंसेस को इन तीन किस्म के सेंटेंसेस में तब्दील करना है। जैसे इट इज काइंड ऑफ यू टू इनवाइट अस, नेगेटिव इट इज नॉट काइंड ऑफ यू टू इनवाइट अस। एक्सक्लेमेटरी में हाउ काइंड ऑफ यू टू इनवाइट अस। क्वेश्चन में इज इट काइंड ऑफ यू टू इनवाइट अस। नेक्स्ट है सेकंड, ही इज जेनरस, यानी वो बहुत सखी है। ही इज नॉट वेरी जेनरस। हाउ जेनरस ही इज, एक्सक्लेमेटरी है। क्वेश्चन हो जाएगा इज ही वेरी जेनरस। थर्ड है शी इज वेरी नॉलेजेबल, नेगेटिव शी इज नॉट वेरी नॉलेजेबल। एक्सक्लेम हाउ नॉलेजेबल शी इज। क्वेश्चन में अगर इसको तब्दील करते हैं तो इज शी वेरी नॉलेजेबल, क्या वो बहुत इल्म वाली है या रखती है। फोर है गोल्ड इज वेरी प्रेशियस, नेगेटिव हो जाएगा gold is not very precious. Exclamatory, how precious gold is. Interrogative, is gold very precious? Fifth, the wind is blowing from the west. यानी हवा चल रही है मगरिब से। नेगेटिव हो जाएगा the wind is not blowing from the west. Exclamatory, how the wind is blowing from the west. Or interrogative, is the wind blowing from the west? तो ये क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं सिंपल सेंटेंसेस की तरफ कि हम पहचानते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या है। तो सिंपल सेंटेंस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस। तो सिंपल यानी एक सादा सा जो जुमला है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी जुमले की, यानी बिल्कुल सादा शक्ल है। इट कंटेन्स द बेसिक कंपोनेंट, यानी एक सिंपल सेंटेंस में आपको दो चीजें मिलेंगी जिसकी वजह से वो सेंटेंस में बनता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब एंड द कंप्लीट थॉट। और उसमें क्या होगा, सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट वर्ब मिलेगा और वो कंप्लीट थॉट यानी आपको मुकम्मल, आपको उसका यानी उसमें आपको एक बामायनी होगा, यानी वो आपको मुकम्मल एक सोच देगा। इट हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। इसमें एक सब्जेक्ट मिलेगा और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट डूर ऑफ एन एक्शन यानी काम करने वाला, और बाकी जितना भी हिस्सा है वो बात करता है। प्रेडिकेट हमेशा बात करता है सब्जेक्ट के बारे में। अ सिंपल सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड नो डिपेंडेंट क्लास। सिंपल सेंटेंस में जो है, जैसे क्लास में ये याद रखें, इसकी शर्त यही है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो तो वो एक क्लास है। अगर वो कंप्लीट थॉट दे रही है तो वो इंडिपेंडेंट क्लास है या मेन क्लास है। और इसकी कोई नो डिपेंडेंट क्लास, तो इसमें कोई भी डिपेंडेंट क्लास नहीं होती, यानी ऐसी क्लास जिसमें जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो मौजूद है मगर उसको एक और मेन क्लास की ज़रूरत है ताकि वो एक कंप्लीट थॉट दे सके। Therefore, a simple sentence is also referred to an independent class. तो आपने ये याद रखना है, सिंपल सेंटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास है, यानी उसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और वो कंप्लीट थॉट दे रहा है। तो सिंपल सेंटेंस को इंडिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं आप। जैसे शी क्राइड यानी वो रोई, तो उसमें शी जो है सब्जेक्ट है, क्राइड इज द वर्ब, तो ये एक सिंपल क्लास है विच इज द इंडिपेंडेंट, यानी पूरा अपना मफहूम दे रही है। सारा लाइक द बुक, सारा इज द सब्जेक्ट, लाइक इज द वर्ब, बुक इज द ऑब्जेक्ट। तो अगेन जो है ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी उसका एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। दे वर लेट, अगेन दे सब्जेक्ट है, वर इज द वर्ब और लेट इज एडजेक्टिव। ओके, आगे बढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब हमने सिंपल सेंटेंस, हमें पता चल गया सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब पाया जाता है और कंप्लीट था। अब कंपाउंड सेंटेंस को देखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस, यानी ये कंपाउंड सेंटेंस है, इसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास होगी, यानी इसमें दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस होंगे। यानी जो
कम यानी सब्जेक्ट और वर्ब होंगे जो जो कंप्लीट थॉट देते हैं। These classes are combined with the use of coordinating conjunction, यानी इन इन दो क्लासेस को, इन दो सिंपल सेंटेंसेस इसमें मौजूद होंगे, और इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, एंड सो हैं। यानी इंडिपेंडेंट क्लास प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लास, तो ये हमें कंपाउंड सेंटेंस इससे मिल जाएगा। जैसे अब देखिए, ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और ऑब्जेक्ट भी है विच इज द टी। और दूसरा, ये पहला सेंटेंस है। अगर दूसरा सेंटेंस के बारे में बात करें तो ही लाइक्स कॉफी। यानी ये दो सिंपल सेंटेंसेस हैं, आई लाइक टी, ही लाइक्स कॉफी। मगर इनको मिलाने के लिए हमने क्या किया, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया, विच इज एंड। तो हम ये कहेंगे आई लाइक टी एंड ही लाइक्स कॉफी। तो जब दो सेंटेंस मिल जाएंगे सिंपल सेंटेंस, तो वो एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, और इसको जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। It is also important to notice that punctuations can be used to form a compound. इसमें punctuation यानी एराब भी आप लगा सकते, यानी punctuation mark भी आप लगा सकते हैं, जैसे comma है ऐसे, जैसे using the dash or a semicolon between two independent clauses and also create a compound, तो आप semicolons या dashes का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे he bought me a dress, देखिए ये एक सेंटेंस है, और आई डेंट लाइक इट्स कलर। तो अब दो सिंपल सेंटेंस जो हैं, दो जो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, इसको कंबाइन करने के लिए बट का इस्तेमाल किया गया है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ओके, नेक्स्ट है स्लीम हैज रिटर्न होम सो वी डिडंट मीट हिम। अगेन इसमें दो सेंटेंसेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, जिसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से मिलाया गया है, तो इससे हमें एक कंपाउंड सेंटेंस मिलता है। नेक्स्ट, लेट्स मूव। अभी हमें इससे पहले हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ बढ़ें। हमें सिंपल सेंटेंस की समझ आ चुकी है। सिंपल सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा, जबकि कंपाउंड सेंटेंस में हमें दो सिंपल सेंटेंस मिलेंगे, मगर उनको यानी दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी, और उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से जोड़ा जाएगा या कंबाइन किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लास connected to it। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक इंडिपेंडेंट क्लास, और दूसरा एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लास। ये दूसरी इसकी शर्त है। अब आपको ये पता है कि इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो मेन क्लास है, यानी जो कंप्लीट, यानी जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब पाया जाता है और कंप्लीट थॉट देती है। मगर डिपेंडेंट क्लास हमेशा जो है वो डिपेंड करेगी इंडिपेंडेंट क्लास पे, ताकि वो एक कंप्लीट सेंस दे सके। तो इन complex sentences, clauses are connected by subordinating conjunctions। अच्छा, अब पहले हमने सिंपल सेंटेंसेस को, जब हमने उनको जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल किया, एंड, बट, ठीक है। मगर यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इन क्लासेस को कनेक्ट करने के लिए हमने सब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है, और वो ये हैं व्हेन, अनटिल, बिकॉज, वाइल। अगर ये वाले अगर आपको किसी भी सेंटेंस में मिलते हैं, तो आप ये समझ लें कि ये जो हैं, ये इनका जो काम जो होगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी ये क्लासेस को
कंबाइन करने या कनेक्ट करने में मदद करेंगे, यानी ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। You can construct a complex sentences by including the dependent clause first, followed by independent clause. आप इनको complex sentence बनाने के लिए आपने क्या करना है, एक dependent clause को पहले आप ले आएंगे और उसके बाद independent clause को, और ये change भी हो सकता है पोजीशन, जैसे डिपेंडेंट क्लास प्लस इंडिपेंडेंट क्लास, तो आपको complex sentence मिल जाएगा आपको। जैसे when the cake is brown, comma, take it out the oven। अब देखें, फर्स्ट व्हेन द केक इज ब्राउन। अब देखो, देखें ये क्लास है, केक इज द सब्जेक्ट, वर्ब भी मौजूद है, मगर अब व्हेन द सब व्हेन द केक इज ब्राउन, जब ये केक ब्राउन हो जाए तो ये कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा है, इसको एक इंडिपेंडेंट क्लास की जरूरत है। वो ये है, टेक इट आउट द ओवन, ये उस वक्त क्या करना, उसको ओवन से निकाल देना। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें एक डिपेंडेंट क्लास है जो अकेले में, दिस कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में ये अकेले में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे मायनी या डजंट मेक अ कंप्लीट थॉट। इसको एक इंडिपेंडेंट क्लास की, जैसे मैंने पहले भी कहा, इसको इंडिपेंडेंट क्लास की जरूरत है ताकि इट जस्ट मेक अ कंप्लीट सेंस और थॉट। ओके जी, इस यूनिट का लास्ट जो है एक्सरसाइज है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। आपने इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और आपने ये बताना है कि आया कि ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। पहले दो मैं आपके लिए कर देता हूँ, तो बाकी की जो आपने मुझे आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि आपके कौन क्या आंसर थे या कितने ठीक थे। जैसे फर्स्ट है, द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड इन द फायर बट द होल फैमिली वॉज सेव्ड। देखिए इसमें दो सेंटेंसेस है, सिंपल हैं, द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड, द होल फैमिली वॉज, यानी दो सिंपल सेंटेंसेस को, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास को एक बट से जोड़ा गया है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। Walking through the wood, he saw a fox that was following him. That was complex sentence. Third है, the large horses walked slowly। तो देखें इसमें large horses subject है, walked is the verb, और slowly जो है adverb है, तो ये एक simple sentence है। Complex, if I do not get this job, I will start a business। तो पहला जो इसका हिस्सा जो है if से शुरू हुआ है, ये डिपेंडेंट क्लास है, जबकि जो सेकंड जो है इसका हिस्सा जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास है। He said that he was so disappointed that he would not try again, तो ये complex sentence है। Next is also the complex sentence, the man who ruled the world with their pens are mightier than those who rule the world with their swords। Simple sentence है जी, Javed and Palvisha went home। Simple again sentence है, this the evil that men do lives after them। All that glitter is not gold, again this is the simple sentence। और लास्ट में, neither the color nor the design of this cloth appeals to me, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। जिस स्टूडेंट्स मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ जो आज SLOs यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के बारे में जो हमने बात की है, उन उन्हें आपने बखूबी समझ लिया होगा। अब आपको मुझे यकीन है, अब आप सेंटेंस टाइप्स के बारे में आप जानते हैं और उसके मुख्तलिफ आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, यानी उसको अफर्मेटिव यानी उसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी में तब्दील कर सकते हैं। और आप ये जानते हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं।
और आपको इस चैप्टर में हमने बात की है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैं उम्मीद करता हूँ वो खूबी आपने इन इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझ लिया है। तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और साथ में कमेंट करें।